Assalamualaikum 5 class. As you know that we are reading unit number 3, the plants world, and today's topic is germination of a seed. What is germination? Germination means to start the plant growth. Germination कहते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ को, उगाने को. अगर कोई भी हमारे पास प्लांट है, उसका सीड है, तो हम उसको उगाते हैं. उस उगने के अमल को हम जर्मिनेशन कहते हैं. So start the reading. The process by which involves a seed becoming a plant is known as germination. That process which start the seed to becoming a plant. Seed से जो plant निकलने का अमल है उसको हम germination कहते हैं. Clear? Just like we can take an example. अंडे से किसी बेबी के निकलने को हम उसका क्या कहते हैं? germination कह सकते हैं. Clear? For germination in occur, several things need to happen. इस सीड से पौधे को निकलने के लिए, एक छोटे से प्लांट को निकलने के लिए कुछ चीज़ें दरकार हैं. दे नीड सम थिंग्स. Until they do, the seed remain dormant. जब तक वो चीज़ें इनको नहीं मिलती सीड को, वो उससे नहीं बाहर आता. Waiting for conditions to improve, it waits to improve the conditions. It is like an animal hibernating during winter, waiting for warmth and food to arrive. Just like hibernation. What is hibernation? Hibernation होता है कि एक एनिमल है, जस्ट लाइक फ्रॉग, तो वो क्या करता है कि सर्दियों में अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है, ज़्यादा से खुराक खा लेता है और उसके बाद वो एक ऐसे प्लेस पे सो जाता है और फिर वो अपने लिए बेहतर मौसम का इंतज़ार करता है. When the condition become better for it, it becomes वो जाग जाता है, वो अपने लिए बेहतर इन्वायरमेंट का इंतज़ार करता है. सिमिलरली जो सीड है वो अपने लिए बेहतर इन्वायरमेंट का इंतज़ार करता है. जब उसका लिए इन्वायरमेंट बेटर होता है, देन इट जर्मिनेट. विच आर द थिंग्स दैट इट नीड टू जर्मिनेट? These are the things that a seed needs for germination to occur. Water. A seed need water to germinate, oxygen, light and heat. ये चार चीज़ें हैं. These are the four things that a seed need to germinate. When enough of each of these four things is present, the following events occur. जब ये चारों चीज़ें इसको प्रॉपर वे में मिलती हैं तो ये प्रोसेस होता है. यू कैन सी ऑन योर नेक्स्ट पेज. ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 process occurs. Clear? So first one is the seed soaks up water from the ground. When the water enters the seed, it breaks down the food that is stored inside it. First of all, the seed soak the water. वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है. इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड स्टोर द वाटर इनसाइड इट. और जो इसके अंदर खुराक होती है वो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. वाटर help to break down the food inside the seed, and this water comes from the ground. Clear? When the food inside the seed breaks down, it releases energy. This energy causes the embryo plant to grow inside the seed. You know that I have told you that in the seed there is a small plant that is called embryo. So this food, when the food breaks down, it releases the energy. That energy it use the embryo use to just for its growth. Clear? Third one, the embryo plant gets too big for its seed and breaks through the case. The case has been softened by the water. You know that seed is a hard thing. When it soaks the water, it becomes softened. क्या होता है कि जब एम्ब्रियो का जो प्लांट होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यू कैन सी इन सी पार्ट, तो क्या होता है कि ये अपने केस से, ये अपने सीड से बाहर आ जाता है और जो इसका सीड है वो वाटर की वजह से नरम हो जाता है. डी पार्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट टू ब्रेक थ्रू द सीड आर द रूट्स. द फर्स्ट पार्ट जो इस अपने केस को तोड़ के बाहर आता है इनसाइड द ग्राउंड, इट मेक्स द रूट्स. वो अपनी जड़ें बनाता है. ओके, द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड एंड एंकर द प्लांट टू स्टॉप it being blown or washed away. You know that कि ये जो रूट्स है ये इनसाइड द ग्राउंड होती हैं और ये प्लांट को
मजबूती के साथ ज़मीन के अंदर जकड़ देती हैं ताकि वो अच्छे से इसके अंदर मर्ज कर जाए और वहाँ से अपनी जो है जो नीड है मिनरल्स की और जो दूसरी नीड्स हैं वाटर की वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके. द नेक्स्ट पार्ट टू एमर्ज इज़ द cotyledon. The cotyledon has a shoot attached to it and the shoot grows upward through the surface of the ground. Look it. It has a shoot system. इसके साथ एक तना निकलता है जो ऊपर की तरफ ज़मीन से ऊपर की तरफ जो है वो उगता है और अपना एक shoot system बनाता है. Once the shoot breaks through the surface, light and heat from the sun enable the plant to start producing its own food. The cotyledon leaves the turn green. You know when it becomes shoot system, जब इसका shoots जो हैं वो बाहर आती हैं, roots के ऊपर जो shoots होती हैं, तना होता है, जब वो बाहर आता है तो वो क्या होता है कि सन एनर्जी, सनलाइट और हीट डायरेक्ट जो है वो प्लांट को मिलना शुरू हो जाती है और इसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन हो जाते हैं और इसके अंदर जो है वो कॉटिलेडन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. यानी कि इसके अंदर कॉटिलेडन, 1 कॉटिलेडन है या 2 कॉटिलेडन सीड है, वो बनना शुरू हो जाता है. नाउ द प्लांट इज नो longer relying on the food its seed as it produce more its own food, it grows more leaves. जब ये प्लांट जो है ये ज़्यादा सनलाइट लेता है, हीट लेता है, तो क्या करता है कि ये अपने प्लांट को, अपने लीव्स को और ज़्यादा ग्रोथ देता है और वो प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं मोर एंड मोर. इट ऑल्सो ग्रोज बिगर एंड इवेंचुअली प्रोड्यूस सीड दैट इवेंचुअली फ्रॉम अ न्यू प्लांट. और जैसे जैसे ये बड़ा होता है ये अपने फ्लावर में, अपने प्लांट के अंदर सीड्स बनाना शुरू करता है और इस तरह से एक न्यू प्लांट को बनने में हेल्प मिलती है. स्टूडेंट, दिस इज योर टॉपिक germination of seed. Related questions are given on your notes, so learn them very carefully and draw this diagram on your notebook. Thank you so much.